Hello everyone. Now we are going for the next topic, that is called assets. And what are the assets? Anything purchased for use in business is called assets. Look, anything purchased for resale is called goods. Goods is what which is purchased for resale. And assets is what which is purchased for the purpose of use in the business. If you have a garment business, then garments purchased for resale is called goods. Anything which is purchased for resale is called goods. But in the garment shop, if you have some AC, computer, furniture, then they are not for resale purpose. They are for the purpose of use in the business. Then anything purchased for the use in the business is called assets. And there are two types of assets called non-current assets and current assets. What are non-current assets? Assets used in the business for long period purpose is called non-current assets, and assets used in the business for short-term purpose is called current assets. We can further segregate non-current assets into tangible fixed assets and intangible fixed assets. What is tangible word means? Tangible means which can be seen, which can be touched. That's called tangible. So any assets which can be seen, which can be touched. फिक्स असेट्स मतलब लॉन्ग पर्पज से काम आएगा. तो एनीथिंग विच कैन बी सीन, जिसको देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, और जो लॉन्ग पीरियड के लिए काम आएगा, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल फिक्स असेट्स. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कैन बी सीन, इट कैन बी टच, एंड इट्स यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग पीरियड, राइट. तो बिल्डिंग इज टेंजिबल फिक्स असेट्स. लाइक मशीनरी कैन बी सीन एंड टच, and it is used for long period, it's called tangible fixed assets. Like furniture, like vehicles, all these can be seen, can be touched, and they are used for the purpose of business for long period, so they are called tangible fixed assets. And what is the word intangible means? Which cannot be seen, which cannot be touched. Anything which cannot be seen, which cannot be touched, and used for the purpose for long period is called intangible fixed assets. For example, like goodwill, you cannot see goodwill, you cannot touch goodwill. So goodwill is what? Intangible, but it's used for long period. Goodwill means brand value, and brand value is created in long period. So it cannot be seen, it cannot be touched, therefore it's an intangible assets, but it's a long term assets, therefore it's a fixed assets. So intangible fixed assets like goodwill, like trademark is logo. You can see Maruti logo like S, you can see Audi logo, right. So logos are called trademarks. It's also brand value. उस लोगो की एक ब्रांड होती है, वो टाटा मोटर्स की एक ब्रांड वैल्यू है. Nobody can use that logo except the company authorized for that, except the company who have registered the trademark for that, right. Goodwill, trademark, patents. जब भी कोई कंपनी कुछ नए इनोवेशन करेगी तो वो उसको अपना पेटेंट करवा लेती है, पेटेंट राइट्स करवा लेती है, रजिस्टर्ड करवा लेती है. सपोज आपने कोई कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन बनाई तो आप उसको पेटेंट करवा लेंगे. अब उसको कोई और नहीं बना पाएगा, सिर्फ आप ही बनाकर बेच सकते हो, राइट. इट्स कॉल्ड पेटेंट राइट. कोई भी नए इनोवेशन के लिए उसको रजिस्टर्ड कराना. तो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट, ये जितनी भी बुक्स होती हैं उसको आप कॉपी नहीं कर सकते एज इट इज, इट्स कॉल्ड कॉपीराइट. मूवीज़ होती हैं उस पर कॉपीराइट होता है, टीवी सीरियल्स होते हैं उन पर कॉपीराइट्स होता है, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता. तो ये थी नॉन करंट असेट्स. असेट्स यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड नॉन करंट असेट्स. tangible मतलब which can be seen and touch, और intangible मतलब which cannot be seen and touch, right. This is non current assets. Next is current assets. Current assets are those which is used for the purpose of business for short period, for the purpose of business for short period. And total current, जैसे शॉर्ट पीरियड में कौन कौन सी assets आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक. देखिए गुड्स वो होता है जो आपने टोटल परचेज किया. जैसे आपने 5 लाख का गुड्स परचेज किया, दैट इज कॉल्ड परचेज, लेकिन उस 5 लाख में से आपने 4 लाख का बेच दिया, तो आज आपके पास कितना बचा? 1 लाख. दैट विल बी कॉल्ड स्टॉक. तो जो भी चीज़ें अपने पास पड़ी हुई है वो सब असेट्स है, वो सब असेट्स हैं. तो जो आपके पास 5 लाख का गुड्स खरीदा था उसमें से 1 लाख का बच गया, 5 लाख इज कॉल्ड गुड्स. जो 1 लाख का बच गया दैट इज कॉल्ड स्टॉक. अब वो स्टॉक आपको 10, 12, 15 साल तक यूज में आएगा या आप कभी भी बेच सकते हो उसको.
है ना, वो यू कैन सेल इट एनी टाइम, कभी भी हो सकता है वो 2 दिन में बिक जाए वो सारा का सारा। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ कि लॉन्ग टर्म के लिए हुआ? जो गारमेंट शॉप ने अपने गारमेंट्स रखे थे वो 10 साल बाद बेचने के लिए रखे थे या कभी भी बेच सकते हैं? यू कैन सेल इट एनी टाइम। तो वो शॉर्ट पीरियड की असेट्स हुई, तो स्टॉक जो हो गया वो करंट असेट्स हो गया। इसके अलावा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना, ये सब भी आपकी शॉर्ट टर्म असेट्स हैं। आपका कैश बैलेंस कभी भी चेंज हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस कभी भी चेंज हो सकता है। आपके डेटर्स जिनसे पैसे लेने होते हैं, कल मैंने आपको बताया था, डेटर्स मतलब जिनको आपने क्रेडिट पर सेल किया, दैट्स कॉल्ड डेटर, उधार बेचा। इनसे पैसा लेना है तो इनको अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं, राइट। तो डेटर भी आपकी शॉर्ट टर्म असेट्स हो गई। ये सब आपके एग्जांपल्स हैं शॉर्ट टर्म असेट्स के, यानी कि करंट असेट्स के। एंड करंट असेट्स के एक्चुअल में 3 पार्ट करते हैं अपन। टोटल करंट असेट्स का एक फॉर्मूला है, टोटल करंट असेट्स का एक फॉर्मूला है, टोटल करंट असेट्स इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। टोटल करंट असेट्स में 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। वन इज कॉल्ड लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड लिक्विड असेट्स। जैसे इसके अंदर कैश इन हैंड इज ए लिक्विड असेट्स, कैश एट बैंक इज ए लिक्विड असेट्स, डेटर्स को भी 10-12 दिन 15 दिन की उधार देते हैं, दिस इज कॉल्ड लिक्विड असेट्स, ठीक है ना। तो जिसको हम जल्दी से कुछ टाइम में ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड लिक्विड असेट्स। लाइक कैश, बैंक, डेटर्स, ये सब लिक्विड असेट्स हैं। स्टॉक अलग है, स्टॉक लिक्विड असेट्स नहीं है, क्योंकि स्टॉक को आप, जो गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो गुड्स जब बिकेगा तो ही वो कैश में कन्वर्ट होगा। हो सकता है वो 2 दिन में बिक जाए, हो सकता है वो 6 मंथ्स के बाद बिके, हो सकता है वो 2 साल के बाद बिके, यू कैन नेवर नो, राइट। तो स्टॉक अलग होता है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी को एडवांस में आपने कोई पेमेंट कर दिया, इट्स कॉल्ड प्रीपेड। आपने वर्कर्स को सैलरी एडवांस दे दी तो इट्स कॉल्ड प्रीपेड सैलरी। आपने लैंडलॉर्ड को रेंट 2 महीने का एडवांस दे रखा है, इट्स कॉल्ड प्रीपेड रेंट। तो देयर आर 3 सेग्रीगेशन ऑफ करंट असेट्स। टोटल करंट असेट्स में 3 चीज़ें शामिल करते हैं। लिक्विड असेट्स लाइक कैश, बैंक और डेटर्स, दीज आर कॉल्ड लिक्विड असेट्स, है ना। यहाँ लिख देते हैं कैश, बैंक, डेटर्स, ये एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड असेट्स के। और इसके अलावा प्लस स्टॉक और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कई बार लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला पूछता है, तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड एसेट्स? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू टोटल करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। गॉट द पॉइंट? ओके, now this is completed. Next point we are doing wasting assets. And what is wasting or wasting assets? Any natural resources that are being explored over the period of time. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, अगर उनके कोई राइट्स हमारे पास हैं, इट्स कॉल्ड वेस्टिंग असेट्स। लाइक माइंस एंड क्वेरीज, जो माइंस होती हैं वो दैट्स अ नेचुरल रिसोर्स, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स आप माइंस में से मिनरल को एक्सप्लोर करते जाते हो, तो वन डे इट विल बिकम एंड, राइट। तो माइंस एंड क्वेरीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज और वेस्टिंग असेट्स। ऑयल फील्ड्स, जो भी पेट्रोलियम्स वगैरह होता है वो आप निकालते रहते हो, एक दिन वो एक्सप्लोर हो जाता है, तो ऑयल फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टिंग असेट्स। तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड वेस्टिंग असेट्स, राइट। देन इज फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स होती हैं असेट्स हैविंग नो रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको बेचा नहीं जा सकता, जिसकी सेलेबल वैल्यू 0 है। आज अगर आप उसको बेचने जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो दैट्स कॉल्ड फिक्टिशियस, है ना। एक आर्टिफिशियल असेट्स बना दिया आपने, उसको बेचने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लाइक हैवी एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट, आपने एडवर्टीजमेंट पर, पब्लिसिटी पर आपने 50 लाख रुपीस खर्च कर दिया, एंड यू एक्सपेक्ट दैट ये जो एडवर्टीजमेंट पे 50 लाख रुपीस खर्च किया है, इसका बेनिफिट 5 ईयर तक मिलेगा, है ना। तो 1 ईयर का बेनिफिट कितना हो गया? अगर 5 ईयर में 50 लाख रुपीस मिल रहा है तो 1 ईयर का बेनिफिट कितना हो गया? 10 लाख। वो तो हो गया एक्सपेंडिचर, और बाकी जो 40 लाख फर्दर आने वाले ईयर्स का खर्चा है, दैट्स कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। उसका बेनिफिट कब मिलेगा? बाकी 40 लाख का आने वाले ईयर्स में मिलेगा, बट आप उसको सेल करके कुछ भी कमा नहीं सकते, आप उसकी कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं होती। वापस से एडवर्टीजमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते, हमारे पैसे वापस करो। एडवर्टीजमेंट हो चुका है, अब आपको वापस पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपकी असेट्स है, उस एडवर्टीजमेंट की वजह से आपको फ्यूचर में इनकम होती रहेगी, है ना। तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर की यूजफुल लाइफ है उसकी, 5 साल तक चलेगा वो।
तो इट्स कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स एंड दिस में ऑल्सो भी नोन एज, इसका दूसरा नाम भी है, एक आपने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बिकॉज इसका बेनिफिट इज डेफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर्स. अभी 1 ईयर का बेनिफिट 10 लाख का था, अभी 40 लाख रुपीस डेफर्ड है. बेनिफिट कब मिलेगा? आने वाले टाइम में मिलेगा. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. ठीक है. लास्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल यूज. नॉर्मली अपनी एसेट्स को, जैसे आपने व्हीकल यूज किया, जैसे आपने व्हीकल यूज किया, आपने व्हीकल को 5 साल पहले खरीदा था, एक एक्टिवा खरीदा था आपने 5 ईयर अगो, और वो 50,000 में परचेज किया था. आज अगर आप उसको सेल करने जाएंगे तो क्या 50,000 मिलेंगे? क्या आज उसकी वैल्यू 50,000 नहीं रहेगी. उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी? कम हो चुकी होगी. वो एक्टिवा पुरानी हो चुकी है. सपोज आज उसकी वैल्यू केवल 15,000 है. आपने परचेज 50 में किया था, 15 रह गया, 35,000 की वैल्यू कम हो गई. दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन. तो ऐसे ही बहुत सारी एसेट्स होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और यूज़ में करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है. इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल यूज. असेट्स को नॉर्मली यूज करने से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये फुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं बना के. वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, डेप्रिसिएशन. आगे पढ़ेंगे हम लोग. तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल यूज. असेट्स को नॉर्मली यूज करने से जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन.